नमश्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे यदाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। So, namaste everyone. Today's training, internal training, is about a very not so interesting topic about training SOPs. Many of us already know how trainings run, how do we conduct, what is the procedure, but this session is mainly for the ones who are pretty new for the trainings, so new chaps basically. Can those who have not conducted any offline training or not been any part of offline training can just raise your hands so that we know. Shashi sir, let me see. So Dilip, Mukesh, Aman Bhagel, Usha, Sudeepa. That's it. Tanushree, were you a part of any training offline? Yes, एक बार मैं गई थी ट्रेनिंग जब गुरुग्राम में। अच्छा, okay. But are you aware of the pre-training, post-training, कैसे करते हैं, logistics? नहीं. Okay, anyway. So, what we are going to do is, एक हमारा ready-made SOP document है. We'll just share that document and we'll read and understand. Yes, Suchira ma'am. नहीं मैं बोला कि मनोज मीना वो भी अभी न्यू जॉइनर अच्छा, okay, ऑफ राजस्थान. Okay. Manoj and who, ma'am? मनोज जी नमस्ते. एक ही है मेरा नहीं मैम, नाम ही मनोज मीना है. Okay. So Hemant sir will start off. We'll share the screen of the SOP document. Thank you. सब आप लोग सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन को? Hemant sir, scroll it a little down. Come to the KVJNV part. Point number 3, you can come. Enough. You can stop. So, I want to ask all the new chaps or new to the training basically. Why do we do the trainings? Why do we do the trainings? Fairly silly question. Why do we take training or why do we implement? Yeah, for implementation, right? Okay. Dilip want to answer, I think. Yes. Dilip, please continue. Dilip. Yes sir, for implementation मैं भी यही बोलने वाला था. Okay, sorry. So basically हमारा program ऐसे चलता है that we are directly not connected to the schools, but we are connected to the schools mainly through teachers. So it is the teachers who are implementing our program in the school, except our adopted model. So to conduct the teachers training efficiently, we have some processes in place that have been that we have been following since the last 10 years or so, which will make the entire process easy for us to organize the training and also
enable the effectiveness of the training. Sorry, Pia ma'am, can you Nalini, just ask them what is meant by 1 minute? what I'm asking. If you ask them what is this training, this session is called SOP of training, na? So what is SOP? What is the full form? Are they aware of it? What is SOP? My voice is clear? Yes, You can hear me? yes, we have your voice. Usha says no. Yes, yes. Usha, सुनाई नहीं दे रहा मेरा आवाज? नहीं नहीं तनुश्री मुझे को नहीं सुनाई सुनाई दे दे रहा रहा है है। मैम। मैं एसओपी का मतलब नहीं पता है ये बोलने वाली। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूछा ना सबको। किसको आता है? शशि ने लिखा है, देखो क्या है, पढ़ो उषा। राइट, रीड व्हाट इज रिटन। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्या मतलब है? कोई बोलेगा? कोई बताएगा? व्हाई वी कॉल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसका क्या अर्थ है? कोई किसी को मालूम है तो बोलो। शशि, कैन यू से? शशि जी, आप बताएंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? इंद्रानी मंडोल ने हाथ उठाया। इंद्रानी बोलो। आप भी बोलिए, इंद्रानी जी को भी बोलने दीजिए आपके बाद। आप बताइए पहले। मैम, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ट्रेनिंग के लिए, प्रोसीड्यूर करना। ओके, ठीक है। मैं शशि जी बोलूं? को भी बोलने दीजिए। शशि जी, आप भी बोलिए। जी, मुझे जो लगता है वो ऐसा एक मानक होता है किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करने का। तो उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं। और कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसका एक मानक निर्धारित करते हैं, स्टैंडर्ड एक फिक्स करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। उसी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ओके, उषा समझ में आया? उषा, आपको समझ आया? मुझे इतना ज्यादा नहीं समझ में आया कि किसी भी काम को करने से नहीं पहले समझ में आया, ठीक उसका है। हरिओम ने भी, तनुश्री ने भी हाथ उठाया है। यस, हरिओम, तनुश्री बोलिए। हरिणी, आप कहाँ चले गए? उषा, Sorry, my sister's kid was disturbing. I had to put her outside. So उषा, कोई भी काम जो किया जाता है कॉरपोरेट में, इंडस्ट्री में, उसको करने का एक एक स्टेप, कैसे एक एक स्टेप करना है और उस स्टेप पे क्या क्या ध्यान देना है, इन हर एक चीज को जब लिखित तौर पे लिख करके या उसका एकदम टाइप करके रख दिया जाता है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको हर एक एक चीज को जिस स्टेप पे जो जो चीज फॉलो करनी है, उस हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए जब वो काम करता है तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है। वह एक स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल होता है कि ये प्रोसेस अब एक स्टैंडर्ड के रूप में है। इसलिए चाहे वो किचन में खाना बनाने का हो, चाहे घर को बनाने का हो, चाहे वो इंडस्ट्री में कोई दवा बनाने की हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग करने की हो, हर एक स्टेप पे क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, इनको फॉलो करना ही, तो जिसको हम फॉलो करते हैं उसी का नाम दिया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओवर टू यू भरनी, पिया मैम। बिल्कुल सही हरिओम ने जो कहा, मैं एक बार और दोहरा देती हूँ सबको। ये प्रोग्राम जब हमारा लॉन्च हुआ तो हमने देखा ट्रेनिंग बहुत एक मेटिकुलसली ट्रेनिंग का प्रोसेस बना हुआ था, ट्रेनिंग का पूरा फ्लो बना हुआ था, लेकिन उसके आगे पीछे जो काम होता है उसके लिए प्रोसेसेस नहीं थे। तब हमने इसको डिजाइन किया। तो डिजाइन करके हमने इसका एक स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की कि चाहे जम्मू में ट्रेनिंग हो या चेन्नई में हो या लखनऊ में हो, तो हर जगह अगर हम इस एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे
तब क्या होगा, इसका जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। दूसरा, एक प्रोसेस के द्वारा अगर ये गुजरता है तो सब इसको जब सीखेंगे तो चाहे वो एक जगह ट्रेनिंग करे या दूसरी जगह जाए तो सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए हमने इसका एक माना कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। अब ये हर साल इसको हमने अपडेट भी किया। ऐसा नहीं कि एक बार जो प्रोसेस बना लिया उसी से लेके हम चले। हम 10-15 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसको हम रिव्यू करके इसको अपग्रेड करते रहे हैं। तो एफसीबी में भी इसको जब हमने किया था तो इसको हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया था। तो अभी भी हमने इसको देखा है, थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है। लेकिन अगर आपको कहीं पे किसी को लगता है कि और भी इसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है तो हमें बताइएगा। लास्ट ईयर भी हमने इसको अपग्रेड किया था, इस साल भी हमने इसको रिव्यू किया है, देखा है, थोड़ा थोड़ा चेंज भी किया है। लेकिन आपको और भी अगर कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हो। बट अब इसके बारे में व्हाट इज देयर इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आई थिंक Bharini will share with us in detail. Yes, Bharini, over to you now. Okay, thank you, ma'am. So, this is, so there are three parts of the training. One is the pre-training, and second is during the training, and one is post-training. So what are the jobs that need to be done before the training, during the training, and once the training is over? So now let's discuss one by one pre-training, activities, whatever that we are supposed to do. Now, instead of me directly reading out, I request someone to read it one by one and explain what they've understood. I request Usha, can you please read this one, the third point? Yes, ma'am. Collecting training recruitments for existing school. For KVJNV private, defense and government school, database team should collect the training recruitments for local RPs in consultations with implementation team, external training team. मुझे जो समझ में आया इससे कि KVJNV प्राइवेट डिफेंस स्कूल से डेटाबेस टीम आरपीस द्वारा कलेक्ट किया गया टीचर्स का जो नेम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे Yes, Usha, continue. इसके द्वारा ही हम एक्सटर्नल ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब कराया जा सकता है। Okay. Saurabh sir, can you add on to what Usha said? Can you tell what are we going to do at this step? Regarding KV and JNV training data collection, ना तो इसमें दो चीजें हैं स्पेशली ट्रेनिंग में। एक डाटा वो जो हमें आरओस की साइट से मिलता है, ठीक है, और एक वो डाटा जो शायद हमारे पास ऑलरेडी हो, कभी ना कभी हमने कलेक्ट किया होगा, ठीक है। बट इसमें तो जो मेन चीज है हमें कंपाइल करना होता है कि वो डाटा सही है या नहीं है जो स्कूल से हमें मिला हुआ है, इस जेएनवी और केवीएस की साइट से मिला हुआ है। और फिर वो डाटा कलेक्ट करके जो भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है हमें, देन वी हैव टू गिव टू द एक्सटर्नल ट्रेनिंग टीम, देन दे विल शेयर विद देयर रीजनल ऑफिसेस एंड द रीजनल ऑफिसेस एक लिस्ट निकालेंगे, फिर हम स्कूटनी करेंगे और उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। Okay, thank you, sir. So, the first step is to collecting the training requirements. हम like Saurabh sir was telling, हम दो साइड से करते हैं। हम खुद के स्कूल से हम चेक करके like database shares sheets of collecting the data, or the local RPs themselves can collect the number of teachers to be trained from their own side and share it to the external training team. And also the external training team will get in touch with all the ROs, will get the data from their side as well. And as local RPs of that particular region, we are responsible to check the data that has been nominated from the regional office side. If you see that only one teacher has been nominated, but you see there's a requirement of 5
you need to rectify. So the communication has to be done there. So the first step of training is collecting the training requirements. It should be done two ways. One, anyway, the regional office will share. Second is, even as RPs, we need to be proactive in checking and share it with the external training team, and they will in fact organize the trainings as required. Yeah, ma'am, would you like to add, or we'll go to the next step? No, I just want to say one simple fact is कि हमारे पास अपने स्कूल के रिक्वायरमेंट का डेटा होना चाहिए. वो आपने पूरे साल में कलेक्ट किया या अभी कलेक्ट किया, उसको रिन्यू किया. जैसे महाराज ने कहा था, हमको अपने स्कूल्स के बारे में पता होना चाहिए. मान लो मेरे पास 10 केवी स्कूल है या 5 केवी स्कूल है, मेरे को पूरा उसका टीचर का खबर जानकारी होना चाहिए कि कितने हैं हर सेक्शन में. आइडियली 1 टीचर पर सेक्शन होना चाहिए एफसीपी के लिए. तो अगर नहीं है तो मेरे को वहां पे लिख के रखना पड़ेगा कि मेरे पास एक कम है. या अगर मान लो सारे टीचर्स ट्रेन है तो आप 0 लिख के रख सकते हो. जरूरी नहीं, ये फिलर ट्रेनिंग है तो आप जरूरी नहीं है कि आपको कराना ही है. तो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले होना चाहिए. आप सबके अपने अपने स्कूलों से आप अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू या आप अपने स्कूल विजिट में पूरे साल में ये रिक्वायरमेंट अपने पास रखिए. उसको अभी वेरीफाई भी कर सकते हैं या बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं. टीचर्स ट्रांसफर होने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू हैव यू नो योर स्कूल्स एंड you must know what is the requirement of your school. Now, as Bharini said, DC and all, they will also collect. The regional office will collect from their side. तो वहां पे भी वो खुद से भी कलेक्ट करते हैं, कई बार आपकी मदद भी लेते हैं. तो अगर आपकी मदद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लेते हैं तो वो खुद से कलेक्ट करके जब हमें भेजेंगे, हम आपको लूप में रखते हैं. आप उस शीट को वेरीफाई कीजिए, अपने शीट से देखिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है उससे वो मैच हो रहा है कि नहीं है. नहीं मैच हो रहा तो फिर आपको अपने स्कूल्स को मोटिवेट करके वहां और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. एंड देन फाइनली जब आप वेरीफाई करते हैं, उसको एज अ अटेंडेंस शीट, डेटाबेस को कहते हैं कि इसको अटेंडेंस शीट में कन्वर्ट कर दीजिए. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. और इंपॉर्टेंट स्टेप इसीलिए कि इसके बेसिस पे ही तो ट्रेनिंग का शेड्यूल होगा ना, कितने लोग आ रहे हैं. अगर लोगों के बारे में ही हमें गलत जानकारी मिलेगी तो बहुत मुश्किल होता है, नॉट ओनली ट्रेनिंग अरेंज करने में, बल्कि बाद में आपको भी दिक्कत आ सकती है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि आपके टीचर्स कम होंगे तो फिर आपके स्कूल्स में वो क्लास नहीं ले पाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन सफर करेगा. तो इट्स अ फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट नो योर रिक्वायरमेंट वेल, and that will only happen when you are in touch with your school regularly. You know them well, right? ठीक है, सबको क्लैरिटी आ गया? कुछ यहाँ पे किसी को पूछना है इन दिस पार्ट? अदरवाइज आप लोग आगे बढ़ सकते हैं. एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं इस कॉन्टेक्स्ट में. केवी से आज बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने मुझे बोला 23 तारीख तक सारे ट्रांसफर की लिस्ट निकलने का बात चल रहा है. तो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे अपने स्कूल्स में तो 23 के बाद ही कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद लिस्ट वगैरह निकलने के बाद यू मे नो कि टीचर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं. मीनवाइल अगर आपको पहले से खबर है तो वो भी अच्छी बात है, तब आप बहुत प्रोएक्टिव हो. नहीं तो 23 के बाद फुल प्रूफ डेटा आपको मिल सकता है. ठीक है, इतना मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया. आगे बढ़ते हैं भाई. Okay. Okay. So just one more point. Last year जो हमने face किया FCP के training में is when the ROs were nominating the teachers, वो बहुत confusion होता है, और they sometimes send already trained teachers को भी वो nominate करते हैं. So if we don't check till the last minute, if we don't verify, then it's going to be very difficult, because one thing is teachers double training, and second is you don't get enough teachers there. So that is one point, right? We'll go to the next. Okay. Now, I request Dilip, can you please read the finalizing dates part, the first part? Am I audible, ma'am? Okay. Finalizing dates. In case of KB, JNB, Defense and Government,
As per the received requirement from RP's external training team, approach the concerned authority to get permission for the training and make sure circular generated for the same. Subsequently, external training teams should send email with proposed date to concerned authority by keeping local RP in loop. ओके, थैंक यू दिलीप. सपना मैम, क्या ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हेलो, यस मैम, वी कैन हियर यू. मैं फोन से हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा, कोई और कर सकता है? तपन सर, कैन यू शेयर what did you understand? What is it there? So we are still with this point, right? KB JNV वाला. तो generally दो phases में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ट्रेनिंग करा क्यों रहे हैं. The need has to be clear. अगर need आपके दिमाग में clear नहीं है, what will happen? You will not know the gravity of the situation and not be prepared well. So first is to understanding of the need. Once you know कि हमारे प्रोग्राम ट्रेनिंग कराने की नीड इसलिए आती है क्योंकि टीचर्स को के थ्रू ही ये प्रोग्राम चलता है. तो अगर स्कूलों में टीचर्स ट्रेन नहीं है तो हमारा प्रोग्राम भी नहीं चलेगा. तो जहां जहां पे गैप्स है, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड अबाउट द गैप्स. वंस दैट इज डन, देन वी हैव टू इंश्योर दैट द वंस द ट्रेनिंग कैलेंडर इज अनाउंस और आप एक्सटर्नल ट्रेनिंग टीम मेंबर्स को आप बताएंगे कि हाँ हमारे रीजन में इतना इतना गैप से इसकी प्लानिंग होगी, फिर वहां से नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस. ठीक है, ओके बरनी. And what is there here about the finalizing dates? हाँ, so finalizing dates, KB and JNB के case में तो obviously it happens through the headquarter level only, right? Whether it's happening in one phases or two phases or how many phases, that will be decided by the headquarter level decisions. And then we have to be well ready for that. कि जैसे इस बार भी बताया गया है, जब training होने वाली है, we have to make ourselves available, right? So that is how we have to proceed with the training at the earliest. Okay, so when after the first step, after the collection of data is, and you submit the data that you get to the external training team, what the external training team does is, as per the requirements list, they approach to the concerned authority, whether it is JNB or KB, उनके साथ बातचीत करके एक सर्कुलर निकलवाते हैं कि इस वाले रीजन में इतना टीचर्स का ट्रेनिंग होना है और ये डेट्स हम प्रपोज करते हैं. इफ यू आर ओके, वी कैन गेट इट डन इन दीज डेट्स. इफ नॉट, यू प्लीज सजेस्ट another date, and these dates etc are proposed with consideration of considering the local RP's point of view on that particular day. So the second point is, once you submit the requirements, external training team will reach out to the authorities, get the circular done and dates finalize करते हैं और local RP को हमेशा loop में ही रखते हैं. Okay, Pia ma'am, यहाँ पे you want to add anything? यहाँ पे मैं इस साल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी सबको. देखो इस साल क्या है, दो तरह की ट्रेनिंग होएगी, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन. ठीक है ना. वी हैव 237 स्कूल सिलेक्टेड फॉर FCP, अवेकनिंग एंड ACP, राइट. तो ये 237 स्कूल्स का हमारे को अभी ट्रेनिंग करानी है ऑफलाइन, और इसमें 200 स्कूलों में FCP और अवेकनिंग और 37 में ACP स्कूल्स में ये ट्रेनिंग अलग अलग जगह में, छोटा छोटा बड़ा बड़ा क्लस्टर में ट्रेनिंग है. तो हमें हेडक्वार्टर से जो निर्देश या एडवाइस किया गया है कि आप डेटा लेके हमको दीजिए और हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारे टीचर्स का ट्रैवल करने में सुविधा होगी. उस हिसाब से इस बार हर रीजन में ट्रेनिंग नहीं होने वाली है क्योंकि नंबर्स आर लेस. So depending on the situation, the headquarters is going to tell us, give suggestions to us in consultation with the regional office कि कहाँ पे ये तीनों प्रकार की ट्रेनिंग वो एक साथ कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इस बार there's a
ये 25 जोन में ट्रेनिंग ना हो के हो सकता है 5 जगह पे या 6 जगह पे हो। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था फॉर 237 स्कूल। और इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग टीम जो है, अवेकनिंग ट्रेनिंग टीम और एफसीपी ट्रेनिंग टीम, एसीपी ट्रेनिंग टीम ऑलरेडी अपना प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से जब हमें डेटा मिलेगा, जैसे ऑलरेडी शत्रुपा ने मुझे काफी सारा डेटा दिया हुआ है नए स्कूलों की ट्रेनिंग की, और उसके साथ जब आप लोगों से भी मुझे डेटा मिलेगा तब उसको कंपाइल करके हम हेडक्वार्टर्स को देंगे बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। क्योंकि अब 23 मई को लास्ट डेट हो गया है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक या फर्स्ट वीक तक हम कोशिश करेंगे कि वो इसको क्लस्टर में बना के डीसी के साथ बात करके और हेडक्वार्टर्स को भेजे। देन दे विल गिव अस सजेशंस व्हिच वी विल शेयर विथ यू कि हाँ ये इस जगह पे हो रहा है या ऐसे होगा। ठीक है, तो इस बार थोड़ा अलग होगा। तो इट इज रिगार्डिंग द ऑफलाइन ट्रेनिंग एंड रिगार्डिंग द ऑनलाइन ट्रेनिंग। आपके लिए आई थिंक ट्रेनर से जो ट्रेनिंग सेंटर बना है, जो हेडक्वार्टर्स में एक टीम बनी है, वो आप लोग को रीच आउट करेंगे टू कलेक्ट डेटा फॉर हेल्प लेने के लिए अगर वो चाहें तो। नहीं तो वो हेडक्वार्टर से भी करेंगे। तो उसके लिए अभी आपको हम अभी कुछ बता नहीं रहे हैं क्योंकि उसको अलग से किया जाएगा। लेकिन सिंस आपके स्कूल्स थे वो, तो मैं ये चाहूंगी कि आप जब डेटा कलेक्शन हो तो आप सारे स्कूल्स का ही डेटा कलेक्ट करें तो अच्छा होगा। क्योंकि हेडक्वार्टर्स के टीम को पता नहीं रहेगा, आप लोग ज्यादा टच में थे ना उन स्कूल्स के। फॉर एग्जाम्पल पहले जो आपके स्कूल थे, तो अगर आपसे मदद मांगी जाएगी तब आप उनका डेटा आप में हेल्प कीजिएगा, नहीं तो हेडक्वार्टर से ये करने की कोशिश होगी एज पर माय नॉलेज। यहाँ पे गोविंद है तो वो और ज्यादा मुझे बता सकता है। अगर गोविंद नहीं है तो बाद में मैं बताऊंगी कि उसको अलग से एक सेशन करेगा कि उसमें आप लोगों की कोई सहायता की जरूरत है या नहीं है। एज ऑफ नाउ आपको जो स्कूल असाइन किए गए हैं उन्हीं का डेटा आप कलेक्ट कीजिए। ठीक है भरिनी, एम आई राइट? डिड आई मिस समथिंग? No, ma'am. Okay, over to you. Okay. So, ma'am, do we do the private school part or we'll skip? No, I just want them to now, private school se pehle, let them also know about, see, this was about a process which goes through the headquarters. Now, in each training, there's a pre-training, training and post-training activity. So please share those things with them also. When training is announced, what is the pre-training work, what is the training work, and then what is the post-training work? And there are some designation also, the payment and all, many things we have changed this year. If you can share with them, then it would be nice. There are designations also given, what is the role of each designation. All these things you please share. Marini, did you understand what, did I make myself clear? Marini? Yes, ma'am. Okay. So, so far everyone is following. Shall we move forward? Okay. Next. So here are the conditions for verifying. We just told that we are going to verify the teachers' data. Local RPs will verify the teachers' list that we have gotten. And these are some of the conditions that are there for verifying whether the teachers are eligible for that training or not. I request Tanushree to please read. Yes, sir. Here, 3 SCP trained teacher must be excluded from the nomination. Second है teacher nominated as per the availability of section, as least one teacher per section. Third is language teacher or those who were teaching classes 6 or 7 are preferred TGT. Others can also be considered as long as they are able to take the classes. और third ये तो private के लिए. Okay, क्या समझ में आया Tanushree? Can you summarize? तो ये जो यार 3 का ACP का ट्रेन टीचर है
इन लोगों को इंक्लूड करना है नॉमिनेशन में, और टीचर नॉमिनेटेड एज पर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Okay, no problem. Rohit, can you share? जी मैम, हमें ईयर 3 के जो एसीपी ट्रेन टीचर होंगे हम उनको ट्रेनिंग में नहीं लेंगे। और जो और सेकंड, हमें कैसे पता चलेगा कि टीचर ईयर 3 का ट्रेंड है कि नहीं है? हम डेटाबेस के साथ भी हम पूछ सकते हैं, या फिर हम डेटाबेस से हम मांग सकते हैं ऑल इंडिया टीचर्स लिस्ट, और उस पर हम डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं उनके जैसे कि नाम, ईमेल आईडी या फोन नंबर से। So when the list goes to database, they themselves check and remark column में लिखते हैं कि teacher already trained है कि नहीं trained है. So they usually highlight that these teachers are already trained. So वहाँ से we can check and verify. And new app, you have also access, है ना? You will also be know that which teacher is already trained. Yes, because the master file is already there, we also have access. So हम भी अपने side से, just to avoid any mistakes, we check and exclude teachers who are already year 3 ACP trained. This is the first point. तो list से ACP trained year 3 का है, अगर teachers उसको हम हटा देते हैं या फिर replacement के लिए मांगते हैं. Second is teacher nominated as per the availability of sections. So this is pretty clear ना कि अगर स्कूल में चार सेक्शन है तो हम चार टीचर्स चाहिए हर सेक्शन के लिए, एक टीचर. अगर 3 टीचर ऑलरेडी है, you only have to ask for 1 like that. So but you have to make sure that हर सेक्शन में at least एक टीचर का ट्रेनिंग हो. Okay. And the third point, who will tell me? Usha, can you tell me? Including your adopted, The third. including your adopted section, na Bharini, including their adopted section Yes. also, right? Yes. Yeah. So in case on weeks where we can't visit the adopted school because of other visits, just so that the children don't miss the class, we make sure that there is a backup for you in case you are missing to go to the school that week. So इसीलिए हम adopted section के लिए भी एक teacher को train करके रखते हैं. Usha, can you tell me the third point? What's the third point? Yes ma'am. थर्ड पॉइंट में यही है कि जो टीचर 6 और 7 क्लास में अभी क्लासेस ले रही है तो हम उनको ही ज्यादातर प्रेफर करेंगे ट्रेनिंग के लिए. तो TGT होंगे तो अच्छा होगा. और अदर टीचर्स जो है, अगर वो टीचर लॉन्ग टाइम के लिए हमारा प्रोग्राम चला सकते हैं तो ही उनका नाम नॉमिनेट करा सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं. Okay, yeah. So हम प्रेफर करते हैं TGTs को, मतलब who are dealing with the middle school programs. But sometimes what happens is because there are not many teachers there, contractual है, कुछ many challenges in the field. Sometimes they also send PGT, sometimes they also send the PRTs. तो उस time हम consider कर सकते हैं if we are sure or if we check with the principal that they will be given class, like they will be able to take classes for class 6, class 7. हमारे program के लिए अगर वो class ले सकते हैं, definitely, then we can consider the name. Okay. But the first preference is for TGTs, class 6 or 7 teachers. Okay. भानी मैम प्लीज हाँ. मुझे एक बार क्लास वाला समझा दीजिएगा क्योंकि मैं समझ नहीं कौन सा वाला? ईयर 3 ACP ट्रेनिंग. अच्छा. ओके, इसमें एक क्या है, हम ना FCP से पहले ACP प्रोग्राम चलाते थे. वो 3 साल का था प्रोग्राम, 6, 7, 8 में. तो 3 साल ट्रेनिंग होता था टीचर्स के लिए. ईयर 1 का अलग ट्रेनिंग, ईयर 2 का अलग ट्रेनिंग और ईयर 3 का अलग ट्रेनिंग. सो द टीचर्स हैड टू अंडरगो 3 years ट्रेनिंग. सो इफ हम KVJNV में ऑपरेट करते हैं ना, एंड देयर आर मेनी टीचर्स हु आर स्टिल वर्किंग देयर. So if they nominate any teacher
फॉर एफसीपी प्रोग्राम जिसने ऑलरेडी एसीपी 3 साल का ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, तब हम उनका नाम हटाते हैं या उनको उनके लिए रिप्लेसमेंट पूछते हैं, बिकॉज द कंटेंट इज सेम. There is no point in asking the teachers to come again. It's the same content, na? We have just made an abridged version of it. Okay. Okay, so the registration link, opening of registration link in 9 days advance and closing of registration link 2 days before the scheduled dates of training, क्योंकि हमको verification में थोड़ा सा time मिल सकते हैं, मिलेगा. मरीनी इसको अगर last थोड़ा minute ठीक तक करना है. अभी 7 days करो इसको. महाराज has said ना, this SOP has to be like, इसको 7 days कर दो. Okay. Before 7 days तो we will have to get. हाँ, so 7 days से, so 7 days before the training day, the entire list should be finalized. Verification सारा होके, replacement, whatever changes that is supposed to be made, everything should be done and finalized 7 days before the training and sent it across. Okay, this is the second thing, second aspect. Now we'll go to the next one. हाँ, तो ये हमने pretty much discuss कर लिया. We'll go to the second part, logistic requirement. अच्छा. So now the data is there. We know the dates. We know where the training is going to happen. But वहाँ पे हम क्या-क्या, हमें क्या-क्या चाहिए होगा, hall चाहिए होगा, और other things we'll need to arrange for the training to happen. No, so this is for the logistic requirements. Point number 2. Can somebody read it out? Who will read? Ravi sir, yes. Yes, ma'am. Prepare logistic requirements to make necessary arrangement for training 7 day advance. अच्छा, तो इसमें इसको थोड़ा सा मैं elaborate करती हूँ. तो हमारा एक फॉर्मेट है, एक टेम्पलेट है जिसको हम पूरा अच्छे तरह से भरते हैं, like all the specifications that we want from the venue. Okay, so it says what is the strength of the teachers, like expected strength in that particular training, let's say 20 members. एंड कितना हॉल चाहिए हमको, एक हॉल चाहिए, कितना छोटे छोटे रूम चाहिए, 3 छोटे छोटे रूम चाहिए, और कितना रिसोर्स पर्सन लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, उनका ट्रैवल टाइम, अराइवल टाइम कितना है, डिपार्चर टाइम कितना है, कितने दिन तक रुकेंगे, कौन से मतलब पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम द एयरपोर्ट, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम द वेन्यू. सो इसका पूरा एक फॉर्मेट, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट एक शीट है. इसके बाद मैं ग्रुप में भेज दूंगी, यू कैन ऑल हैव अ लुक. सो वो शीट को हम भर के पूरा अच्छे तरह से वो ट्रेनिंग इंचार्ज को दिखा के we send it to the concerned people. So if it's KV, then we send it to the venue school. जो स्कूल ट्रेनिंग को होस्ट करेगा, तो उस स्कूल को उस स्कूल के साथ हम कोऑर्डिनेट करके ये वाला ईमेल हम भेजते हैं, कीपिंग इन लूप रीजनल ऑफिस एंड ऑल अदर रिसोर्स पर्सन्स हु आर ट्रैवलिंग. ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? एनी डाउट, एनीवन? ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज चेकलिस्ट. तो ट्रेनिंग के लिए हमको कुछ कुछ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, यस और नो? सर्टिफिकेट चाहिए, फीडबैक फॉर्म चाहिए, कुछ हम टीचर्स को जो देते हैं प्रिपरेशन के लिए मटेरियल चाहिए, राइट? सो वेयर विल वी गेट ऑल दिस फ्रॉम? व्हाट विल वी डू? हु विल रीड दिस? मनोज सर, हु इज न्यू. Oh, Sudeepa, you please read. Local RP needs to prepare checklist for the training with the help of training in charge or senior RP or external training leads.
ओके, सो चेकलिस्ट एक शीट है हमारा, वो भी हम शेयर करेंगे इसके बाद। तो उसमें हमको मेंशन करना है कितना टीचर्स है, हमको कितना सर्टिफिकेट लगेगा। सो लेट्स से माय लोड इज 40, my 40 is the teachers registration. I will write 45 certificates, 45 feedback forms, and so many number of training kits, so many number of FAC guides. तो ये सारा चेकलिस्ट हमारा रेडीमेड फॉर्मेट है, तो हमको ये सारे अच्छे से चेक करके सीनियर आरपी जो है उनके साथ वेरीफाई करके हमको सुचिरा माँ को एटलीस्ट 15 days in advance भेजना है, so that she will have the time and gap to pack things and send it to you. So it involves commute, right? So you have to do it in advance if you need the material ready before the training is there, so that you are not stressed about the material reaching. Okay, so यहाँ पे it's there. You have to send it to Suchira ma'am. I hope this is clear. लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट हमको वेन्यू के स्कूल को भेजना है, जो स्कूल ट्रेनिंग को होस्ट कर रहा है उसको भेजना है, और हमारे तरफ से चेकलिस्ट जो है जो हम वो सब हमको सुचिरा माँ को भेजना है. ओके, नेक्स्ट अटेंडेंस शीट. Pia ma'am, feel free to drop in any time you want to add. Okay. Next is नहीं, आप बोलो, attendance sheet. complete करो, then I will add. Okay, next is attendance sheet. Who will read? Aman Baghel, can you please read? Yes, ma'am. Attendance sheet database team can be collected the teacher's detail in a prescribed format and share the attendance sheet to local RP via email. In case of KV, JNB, defense and government school database prepare attendance sheet after clearing the discrepancies. Thank you. So ये attendance sheet जो है, this is very important in our training. ये so we just told ना, we get the list of teachers, we verify if the teachers is a teacher based on the number of points we have just discussed. अगर वो teacher training के लिए eligible है कि नहीं, हम check करके सारा list database को हम finalize करने के लिए बोलेंगे. तो database तब क्या करेगा, एक फॉर्मेट है अटेंडेंस शीट का, उसमें सारा टीचर्स का नाम, email, phone number, everything, they put it and send that attendance sheet to you. And this they will do once you have cleared, or once you have verified all the data of the teachers, whether they are ACP trained, whether they are new teachers, whether they have already been trained, all those conditions you will check and confirm, and then the database will send the attendance sheet via email. Okay. Next, I hope this point is clear. उसका हमें प्रिंट आउट लेना होगा ना भनिनी, वो अटेंडेंस शीट का हमको प्रिंट आउट लेना होगा लोकल आरपी को. हाँ, क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग है, you want the teachers to sign, so इसीलिए sometimes if somebody is coming from the headquarters, वो खुद प्रिंट आउट लेके आते हैं. Otherwise, if the training is happening locally only, we ourselves need to take a printout. Now, why is attendance sheet very important to get a little ahead in time is, we create a WhatsApp group of the teachers. जो भी attendance sheet हमको मिलता है, वो सारे attendance sheet के teachers को हम एक WhatsApp group में add करते हैं, saying that FCP training for so and so region, like that. एक WhatsApp group at least 2 days before the training. और हम क्या करते हैं उस WhatsApp group में, सारे training related messages उन पे भेजते हैं, like dear teachers, this group is meant for so and so training, and it is going to be held on so and so date at so and so school. I hope all of you are informed about this, etc. etc. This is the details of the venue. सब कुछ हमारा communication वही group में हम भेजते हैं, so that the teachers are informed that okay, this is what I am supposed to need. This is the venue, this is the pre-read, whatever information
that the teacher has to know will go through the WhatsApp group, and the teachers are very well informed, and in case they also have some issues, they can also share in the WhatsApp group. So it's very important to create the WhatsApp group based on the attendance sheet at least 2 days before the training. Okay, ma'am, you want to add? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नया कुछ नया हुआ है जो इस साल होने वाला है। पहले हम 2 दिन पहले बनाते थे, लेकिन अब हमारा KVJNV का हमने ये डिसाइड किया है कि हम 7 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और एक हम प्री ट्रेनिंग मटेरियल बना रहे हैं, प्री रीड बना रहे हैं टीचर्स के लिए, प्री प्रिपरेशन रीड डॉक्यूमेंट, उसको हम व्हाट्सएप में दे देंगे। एंड इससे क्या होगा कि टीचर्स थोड़ा प्रोग्राम के बारे में समझ रख के आएंगे, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड स्मॉल डॉक्यूमेंट विच वी विल सेंड इन द टीचर्स ग्रुप एंड आस्क देम टू प्रिपेयर एंड कम। दिस इज गोइंग टू हैपन 7 days before the training. We are going to try this year. Yes, Roshan has a question. Yes, Roshan. बहुत अच्छा है पिया जी, 7 दिन Roshan, you want to say something? Yes. Am I audible? थोड़ा फेंट वॉइस है पिया जी, आपका। अच्छा, हम कह रहे थे कि हम 7 दिन पहले ग्रुप बना रहे हैं ना, तो क्या हम टीचर्स का ये जो FCP का टीचर सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे जो एक्सेस है उसका एक वीडियो बना के लिंक भी क्या हम पहले डाल सकते हैं, ताकि टीचर ट्रेनिंग आने के पहले ही वो टीचर सेंट्रल प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके आए? ये ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपका सुझाव बढ़िया है। हाँ, नाइस सजेशन, बट हम टीचर्स को एक्सेस ट्रेनिंग के बाद देते हैं ना, वो ID creation and all, but we can of course share that this is the platform through which you will run the program like that, and आपका user ID password will be given after the training. That can be done. Yes, Anjali. रोशन सर ने जो कहा वो सही है, लेकिन मान लीजिए कभी हमने सारे टीचर्स के साथ शेयर कर दिया और फिर उसको एक्सेस करने के बाद कोई टीचर अगर हमारी ट्रेनिंग में नहीं आया, एब्सेंट हो गया, तो इसीलिए तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगी अभी, इसीलिए तो हमने भी बोला ना, वी आर थिंकिंग। एक बात है, ओनली दोस आप सही टीचर कह रहे विल हो, गेट अंजलि की बात बिल्कुल सही है। एक्सेस आफ्टर ट्रेनिंग, है ना, तो हर training हम टीचर ID को create अलग से ईमेल आईडी से एक्सेस दिया जाएगा ना, दे विल यूज देयर ओन ईमेल आईडी टू एक्सेस द ट्रेनिंग सेंटर। तो हमें आफ्टर ट्रेनिंग दोस टीचर ऑलरेडी ट्रेन, then only we will send the all details to the teacher. Yeah, of But course. actually what Roshan meant was something different. एक मिनट Bharini, I think Roshan meant that he wanted them to know about it. So a small video can be put in the WhatsApp group where they will know कि this is how they are going to access material later on. Right now we are not giving them real access, but कैसे होगा उसका एक छोटा वीडियो तो हम डाल सकते हैं, so that they come with an understanding from where they are going to get the material. Is that okay, Roshan? That is what the intention was. हाँ Roshan? Yes, और ट्रेनिंग के बाद में ठीक कहा मैंने। टीचर कम सीरियस होते हैं, ट्रेनिंग के पहले ज्यादा एक्सेस हम सीरियस बाद रहते में हैं, देंगे, तो बट इंफॉर्मेशन पहले दे सकते हैं ना। इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि ट्रेनर सेंट्रल है, यहाँ से एक्सेस हो सकता है, ये एक छोटा वीडियो दिया जा सकता है, लेकिन एक्सेस जैसा सुचिरा और अंजलि ने बोला, हम ट्रेनिंग के बाद ही ईमेल के थ्रू उनको देंगे। यस सौरभ? मैम आई डोंट नो, आई एम लिटिल बिट डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हम उन्हें एक वीडियो बना के दे दे पहले से रिगार्डिंग द ट्रेनर सेंटर। हम मुझे लगता है कि क्योंकि टीचर्स क्या कि ना, क्योंकि मैम अगर सपोज इन केस हमें बता दें कि ये चीजें होने वाली है, मे भी वो एक वो के साथ ट्रेनिंग में है कि अब कंटेंट मिलेगा, ये मुझे लगता है कि हम उसी समय उन्हें बता दें तो इज अ बेटर ऑप्शन कि ये कुछ कंटेंट होने वाला है एंड दिस इज द फ्लो, ये चीजें रहने वाली है। तो मेरा थोड़ी ये मानना है कि हम उन्हें वीडियो में क्यों बता रहे हैं, हम उन्हें प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं वीडियो में ना, ये प्रोग्राम है, मतलब लिटिल बिट ये प्रोग्राम है, ऐसे होने वाला। नहीं, आप समझ रहे, आप मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप चाहते हो, मैं समझ गई सौरभ, आप चाहते हो कि हम ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही उनको बताएं, राइट?
ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं वहां हाँ, हम एक और सेशन करके उनको ट्रेनर सेंट्रल के बारे में बताएं, ये आप कह रहे हो। बिल्कुल मैम, लेकिन हम बिल्कुल आपको मैम। ये बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारा एफसीपी का ट्रेनिंग का फ्लो देखो, उसमें बहुत समय का अभाव है। देयर इज नो जी टाइम वेयर यू बिल्कुल कैन मैडम। डिवोट एक्स्ट्रा टाइम फॉर ट्रेनर सेंट्रल। तो अगर हम प्री प्रिपरेशन का क्या मतलब है, प्री प्रिपरेशन का ये मतलब है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी हम उनको दे रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो वो जान के आएंगे कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा, थोड़ी शंका उनको एक छोटे से वीडियो से समझ आएगा। हम ये नहीं कह रहे हमको पूरा पूरा सारा बता देंगे, थोड़ा सा अगर वो समझ के आएंगे तो आसानी नहीं होगी उनको बताने में। सौरभ, इसमें हर्ज ही क्या है, सोच आई के एग्री देखो। विद यू मैम। यस हरिओम। आई एग्री बट ना आफ्टर ट्रेनिंग जैसे हम लोग फीडबैक फॉर्म देते हैं, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ऐसे दोस्त टीचर हु आर एब्सेंट, हम लोग वो लोग टीचर को निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में सारे डिटेल डाल सकते हैं। हाँ जी। Right now, I'm not talking about giving access. I'm only sharing a pre-training read where we give a small video about training central app और इसके बारे में कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। उसमें आई थिंक हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे हमको उनको जानकारी के साथ वो आएंगे ना, तो उनको क्लूलेस नहीं लगेंगे। प्री ट्रेनिंग का मटेरियल देने का क्या मतलब है, मतलब है कि उनको जानकारी रहे, ये होना है, ये होना है, ये होना है। यस, काफी लोगों ने या हाथ मैम, उठाया है। या हरिओम, मैम, सुदीपा। एक सुदीपा छोटा wants सा to share. पॉइंट। हाँ सौरभ। Yes, ma'am. Ma'am, मैम, मैं completely एग्री हूँ जो आप कह रही है, बट मैं इसे ना थोड़ी अलग तरीके से देखता हूँ। हम ये तो दें, बट हम उन्हें फ्लो भी तो वीडियो में दे सकते हैं कि ट्रेनिंग का फ्लो आपका ये होने वाला है। देंगे ना, हमने अभी मटेरियल हमने आपको शेयर नहीं किया है, हम बना रहे हैं। शिवा सर ने एक छोटा सा बनाया है, वी आर ट्राइंग टू रिव्यू इट एंड मेक इट लिटिल मोर क्रिस्प। तो हम इस बार एक फ्री मटेरियल देने वाले हैं उनको, थोड़ी सी जानकारी हम देंगे, क्योंकि वो ऐसे ही ब्लैंक ना आ जाए। तो जब आप उनको देखोगे तो आप उसमें ट्रेनिंग के बारे में भी रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यस सुदीपा, नाउ यू कैन शेयर। यस मैम। मैम, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने एक बार ऑनलाइन पे अटेंड किया है ट्रेनिंग पे। तो मुझे लगता है कि जिस दिन ट्रेनिंग शुरू होगा उसके आखिरी में अगर भेज दे तो वो टीचर तो दूसरा दिन आएगा ही ट्रेनिंग लेने के लिए, और पहले से एक बार एक्सेस करेगा तो प्रॉब्लम होता है या नहीं, दूसरा दिन आके बता भी सकता है। यही मुझे बतानी थी। दूसरा दिन कहाँ है, एफसीपी तो ट्रेनिंग एक ही दिन का है सुदीपा, दूसरा दिन नहीं कहाँ। नहीं, तुम एफसीपी एसीपी नहीं, और एफसीपी में कंफ्यूज मत हो। नहीं नहीं, एफसीबी का मैं बता रही हूँ। दूसरा दिन कौन सा बोल रहे हो आप। हाँ एसीपी एसीपी में तो एसीपी हम अलग तरीके से डील करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एफसीपी, वन डे ट्रेनिंग इज अबाउट ओके एफसीपी, राइट। तो नाउ वी आर टॉकिंग ओके मेजरली बिकॉज हमारा केवीजेएनवी में मेजरली एफसीपी चल रहा है ना, एसीपी स्कूल्स तो कम हाँ है, तो हम अभी ज्यादातर एफसीपी के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यस, ठीक है। जो आपने कहा वो हो सकता है एसीपी में। यस ओके भरणी, मैम। ओवर टू यू। Yeah, we'll go to the next part. हाँ रोशन सर। जी जी, सरोज जी जो कह रहे थे ना प्रोग्राम के बारे में, पिया जी ने बताया, वैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वीडियो भी शेयर करेंगे। साथ ही में ये टीसी ट्रेनर सेंट्रल वाला भी हम क्या है ना, अभी तैयारी ट्रेनिंग के पहले अच्छे वो सीरियस रहते हैं, और बाद में बोला बाद में शुरू करेंगे, थोड़ा लाइटली लेते हैं, तो एक ऑप्शन है। और देखिए, जब हम एक्सेस दे रहे तो एक्सेस डिनाई करने का भी हमारे पास ऑप्शन होगा। जो टीचर एब्सेंट रहेंगे उनको हम एक्सेस डिनाई कर देंगे। थैंक यू। Okay, sir. We'll go to the next part now. We don't have so much time. So next is preparing work allocation. ये हमें पता होना है कि कौन सा आरपी का रोल क्या है उस ट्रेनिंग वाले दिन में। So the training is from 9 to 5, let's say. उसमें हम कौन कौन क्या क्या करने वाले हैं, इसके लिए clarity is to be more clear about your roles, what is expected of you, what you are supposed to do. We prepare the work allocation sheet.
ये वर्क एलोकेशन शीट ऑलरेडी एक्सटर्नल ट्रेनिंग ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है. जिसने भी अभी तक नहीं देखा, यू हैव नॉट गॉटन एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सी वंस अगेन. तो ट्रेनिंग इंचार्ज ये वाले रोल्स असाइन करते हैं. वर्क एलोकेशन शीट फिल अप करके इंटरनली हम जो भी ट्रेनिंग होएगा, इंटरनली भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे. So let's say four people are there in that training. So 4 of them, along with all the external training team members, will be in part of the group. And उसी group में वो work allocation भेज देंगे ताकि सब RPs को पता चले कि मेरा कौन सा रोल है, मुझे क्या क्या करना है और मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ. Okay, so at least 1-2 days before we'll send so that we know कि हम क्या करना है और प्रिपेयर भी अच्छी तरह से कर सकते हैं. Okay, I hope this is clear. We'll go to the next. हाँ, so ट्रेनिंग के दिन हम क्या क्या करना है. तो फर्स्ट इज अटेंडेंस लेना है टीचर्स का अच्छे से. तो जब भी हम अटेंडेंस लेते हैं उनको बोलना है कि आप पूरा डिटेल्स आपका अच्छे से चेक कर लीजिए. स्पेशली नाउ बिकॉज द ईमेल एड्रेस वी नीड द करेक्ट वन सो दैट हम ट्रेनर सेंट्रल का एक्सेस दे सके. तो एक के 2 बार यू आस्क देम चेक करेक्टली प्रॉपरली एंड देन यू डू द सिग्नेचर. Okay, so phone number, teacher's name, teacher's email address, school's details, everything they should check once, twice and share the correct ones. Okay, तो फिर सिग्नेचर लेंगे. एंड हाँ, तो पहले से ही ग्रुप में आप when you are making the group you can always do constant communication so that the teachers reach the venue on time. तो आप पहले से बोल सकते हैं we'll start at sharp 9 AM etc. all that can be communicated. Now second is ट्रेनिंग का FTP है जो हम ट्रेनर सेंट्रल से ही प्रेजेंट करते हैं. सो इस PPT को हमको रेडी रखना है. और हम क्या करते हैं, इफ वी गो टू द वेन्यू 1 day before, we put the presentation on that projector or the smart board. हम चेक करते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, साउंड आ रहा है, वीडियो चल रहा है, all of them can see or not, everything we do it. Okay, so that is second. Third is time management. You know, this FCP is quite tight, so we follow up each other. हम बोलते हैं कि okay, you've taken a lot of time, we can manage time here. So all that communication coordination can be done within the team. And fourth is हम क्या करते हैं FCP में second part of the training, second half में 40 टीचर्स अगर है तो हम हर 40 के ग्रुप को हम छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं. लेट्स से 10. So 4 classrooms we distribute. तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितने कौन से टीचर्स कौन से ग्रुप में होंगे, ऑल दैट वी विल check with the training in charge will check and along with the other resource persons they will do the allocation. Okay, I hope it is clear. I'm just walking you through quickly because we don't take a lot of time. BR means ब्रेकआउट रूम यहाँ नहीं होगा. एक्चुअली ब्रेकआउट रूम मीन्स अलग रूम. ये ऑफलाइन ट्रेनिंग की बात अगर है तो ऑफलाइन में हम उसको अलग अलग रूम में ले जाएंगे. तो आपको पहले ही वो रूम जो लोकल RPA जब लॉजिस्टिक्स देखने जाएंगे तो जहाँ ब्रेकआउट ये छोटा रूम स्मॉल रूम आफ्टर द लंच जाना होगा उसको पहले से ही आपको लॉजिस्टिक्स चेक करके रखना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपके पास समय कम है. तो जब टीचर्स को आप लेके जाओगे वहां पे आप जाके देखोगे स्मार्ट बोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है या वहाँ काम कर रहा है कि नहीं, फिर बहुत टाइम चला जाएगा. तो ये सब चीजें आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, एक दिन पहले या जब सुबह का आपका जब आप वर्कशॉप में आपका सेशन नहीं है तब जाके आपको करना होगा. तो लोकल RP को जो टीम आएगी उसकी मदद से और स्कूल की मदद से ये चीजें रेडी रखनी पड़ेगी. तो जब टीम अनाउंस हो कि हाँ ये रूम में ये जाएगा, ये रूम में वो जाएगा, इतने टीचर्स जाएंगे, क्विकली with the RP can go and start the session. ये रेडीनेस रखना भी एक लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है जो
आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है ना। और क्योंकि ब्रेकआउट सेशन तो अमित कर देते हैं या हेडक्वार्टर से हो जाता है ऑनलाइन में, वो इजी रहता है, बट ऑफलाइन ट्रेनिंग में ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसको प्री प्रिपरेशन में ही रखते हैं हम। और ये कई कई बार चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए पहले से देख के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और इसके लिए देखो, ये सारा कम्युनिकेशन एक टीम वर्क है, ये पूरा वर्क है, नॉट ओनली इंटरनल टीम जो ट्रेनिंग के लिए जा रही है, बल्कि जो स्कूल वेन्यू है उसके साथ भी आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो इंटरनल टीम के लिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। ऑफिशियल्स के साथ आपको, जो स्कूल वेन्यू स्कूल है उनके साथ भी अच्छा से कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ये जो अपने टीम मेंबर्स हैं उसके साथ टीचर्स का ग्रुप तो आप अलग बनाओगे, उसमें टीचर्स के साथ भी आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। तो 3 एंगल में आपको ये अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके ये प्रोग्राम को सक्सेसफुली आपको एक दिन में क्रिस्प तरीके से करना होता है। तो अच्छे से हो जाता है क्योंकि सारे फॉर्मेट्स प्रोसेसेस हमने बनाए हुए हैं। तो आपको केवल इसको स्टडी करना है जाके। ये ट्रेनिंग रिलेटेड, ट्रेनिंग का जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा फॉर्मेट मटेरियल अवेलेबल है, उसको जाके आप देखिए, चेक कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से अपने जोनल इंचार्जेस को बताइए, वो आपको समझाएंगे। जोनल लीड्स को मैं कहूंगी कि प्लीज अपने टीम को एम्पावर कीजिए और समझाइए कि क्या फॉर्मेट कहाँ है। हमने तो आज 1 घंटे में पूरा छोटा छोटा करके बताने की कोशिश की है, लेकिन इंटरनल ट्रेनर को भी मैं बोलूंगी इसका और ट्रेनिंग सेशन रख के नए लोगों को इक्विप कीजिए, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग सेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए जहाँ पे अच्छे से इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। Am I right, new people? Hope this will help you to become training ready. जो बहुत मुसीबत होती है लास्ट मोमेंट में, अगर हम नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसको अवॉइड करने के लिए इसका आप छोटा छोटा बैच में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं हरिणी। Yeah. Yes, we'll go to next. हाँ, तो ये ब्रेकआउट रूम में when the teachers are separated and they sit in their respective rooms, we give them the जो भी मटेरियल सुचिरा मैम हमको बेचती है ट्रेनिंग के लिए, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो उनको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और फिर टीचर्स डेमो देते हैं एंड द फीडबैक इज गिवन, ओके। एंड वंस आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर, आफ्टर द एंटायर डेज ट्रेनिंग इज ओवर, तो हम फीडबैक फॉर्म पहले सारे टीचर्स को देते हैं। Once the teachers fill out the feedback form, you collect the feedback form and then 1 by 1 certificate you distribute. अगर प्रिंसिपल है वो देना चाहते हैं या कई बार डीसी एसी भी आते हैं, वो भी दे सकते हैं सर्टिफिकेट्स। अगर स्कूल्स नए हैं तो उनके लिए एक गाइड बुक, एफएससी गाइड देते हैं हम लोग, if the school is new, and that also you can mention in the checklist. Suchira ma'am will send the books accordingly. Okay, next. तो अभी तो बुक नहीं देना है ना भरिनी, वी आर गोइंग इट थ्रू ट्रेनर सेंट्रल। अभी हमको उनको जानकारी देनी पड़ेगी ट्रेनर सेंट्रल के बारे में। दैट टाइम वी कैन यूज इट। जो किट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है, वी कैन यूज इट फॉर ट्रेनर सेंट्रल इंफॉर्मेशन। Okay. ठीक है, Okay. you can remove that so, kit distribution part. Now coming to after the training, once the training is over, what are we going to do? तो हम फर्स्ट सारे अटेंडेंस शीट और फीडबैक फॉर्म हम कलेक्ट करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं इफ वी गॉट द करेक्ट नंबर, एंड देन हम को हेडक्वार्टर्स को कुरियर करना पड़ेगा। तो बिफोर इफ समबडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली हेडक्वार्टर से, तो उनके साथ हम भिजवा देते हैं, वरना तो हमको वी हैव टू डू अ courier. Okay, so this is one. Second is upload the pictures and videos of the training to the training folder. And the third is जो भी हम मटेरियल सुचिरा मैम भेजती है ट्रेनिंग का, उस सबको हमको दोबारा उसी बॉक्स में पैक करके अच्छे से रिटर्न कुरियर के लिए निशांतेश सर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये सब 24 आवर्स
within 24 hours of the training, this all should be done. So attendance sheet and feedback form is very, very important. Before you courier the attendance sheet and feedback form, it's always in take a scan. in this context, I want to scan- share one thing. ये कुरियर का जो बात आया ना Yes. भरिनी, I want to share one thing here. Can I? See, Yes, ma'am. देखो, Yes, क्योंकि निशांत सर और जो प्रोग्राम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जहां से हमको कुरियर का मटेरियल मिलेगा और वापस आएगा ना, जहां से हम मटेरियल ट्रेनिंग का लाएंगे और वापस भेजेंगे, तो उन लोगों में दो इम्पोर्टेंट लोग हैं. एक है सुचिरा मैम जो वहां से प्रोग्राम की सामान भेजेगी, और दूसरा निशांत सर जो इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है. तो इन दोनों को, ये दोनों को भी आपको हर ट्रेनिंग ग्रुप में, जब आप एक्सटर्नल ट्रेनिंग टीम के साथ, एक डेटाबेस का पर्सन और ये दोनों लोग को भी आपको उस ग्रुप में डालना होगा, हर ट्रेनिंग के ग्रुप में. क्योंकि क्या होता है, ये आपको वहां पे मदद करेंगे. जरूरत होगा तो आप इनका हेल्प ले सकते हो. जब तक आप रिवर्स कुरियर नहीं भेजोगे वो ग्रुप को आप डिसमेंटल नहीं करना है. तो ट्रेनिंग इंचार्जेस को भी ये ध्यान रखना है कि जब तक कुरियर मटेरियल नहीं आ जाता है वापस, तब तक ग्रुप को डिसमेंटल नहीं कर सकते. एटलीस्ट शी कैन नॉट और ही कैन नॉट लीव द ग्रुप. तो निशांतेश सर, सुचिरा मैम, डेटाबेस का रिप्रेजेंटेटिव, एक्सटर्नल ट्रेनिंग टीम के रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेनिंग टीम जो वो जाएगी, उस सबको इस ग्रुप में रहना इम्पोर्टेंट है. क्योंकि दे विल सपोर्ट ईच अदर, देन ओनली दिस ट्रेनिंग विल हैपन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. दिस इज नॉट कि कोई किसी के ऊपर ओवर पावर करने के लिए घुसना चाहता है. दिस इज अ रिक्वायरमेंट. ठीक है ना? दिस इज अ नेसेसिटी, क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी उनकी, इसीलिए उनको ग्रुप में डालने के लिए बोला जाता है. कई लोगों को मैंने देखा है नहीं डालते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर मुसीबत होती है तो जानकारी नहीं मिलती है. तो जानकारी नहीं मिलती है, हेल्प भी नहीं मिलता है. तो उसको हम सोच के ही ये प्रोसेस बनाया है कि पूरा, अगर टीम एक साथ एक ग्रुप में रहेगा तो कहीं भी अगर कोई बाधा आती है तो उससे बचने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और ये आपकी मदद कर सकते हैं. जिसको ये बात ठीक लगी वो अपना थम्स अप दे सकते हैं, और जिसको अगर कुछ कहना है इसके बारे में तो वो अपना ओपिनियन भी जाहिर कर सकते हैं. ठीक है? We'll go to the next. ओके. तो ट्रेनिंग के बाद MIS एक रिपोर्ट है जो सीनियर रिसोर्स पर्सन अटेंडिंग दैट ट्रेनिंग विल फिल इन. सो इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटायर ट्रेनिंग, कैसे हुआ, कौन कौन से आरपीस वो ट्रेनिंग में थे, किसने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, कोई गैप्स था, एवरी the MIS will be given in a particular Google form. So this is a older version of this thing. We no longer send it in person through a format, but we use a Google form to fill out the MIS. So ये 24 hours within the workshop we send it. And attendance sheet का एक soft copy हम लोग बना के रखते हैं, and we send it via email to this database account, so that until the courier reaches, they'll start their own work. Okay, so we'll go to the next. और क्या है? I think almost done. हेमंत सर नेक्स्ट आइए ना. हाँ बस Done, ma'am, done. It's done. Okay, so I hope now you are acquainted with कि ट्रेनिंग में क्या क्या करना होगा. If you have any questions, we'll quickly take. We are already 10 minutes past time. बात इनफॉर्मली यहाँ मैं बताना चाहूंगी, जो अटेंडेंस शीट का जो पिक्चर है ना, वो लोकल आरपी को रख लेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फिर उसको डेटाबेस से आके मिलने में समय लगता है. तो अगर आप चाहो तो अभी उसी वक्त ये जो अटेंडेंस शीट का जो आपका पिक्चर है वो आप खींच के रख सकते हो, क्योंकि आपको फॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन करना है तुरंत. तो इसलिए आप अगर उसको रख लोगे तो आपको फायदा मिलेगा. ये इनफॉर्मली किया जाता है, ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बट लोग करते हैं. गुड प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने शेयर किया कि आप लोग ये कर सकते हो. क्योंकि जब तक आपको ऑफिशियली पूरा डेटा आएगा तब तक समय लगता है, तो आप उसमें से भी जानकारी अपने पास रख सकते हो.
और फीडबैक फॉर्म को भी अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टीचर्स सब आपके ही टीचर्स होने वाले हैं। जो भी ट्रेनिंग टीम जा रही है और फीडबैक टीचर से आपको मिल रहा है, अगर उसको आप थोड़ा बहुत रीड करोगे, आपको अपलोड भी करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि टीचर्स के क्वेरीज क्या क्या हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस है अगर थोड़ा बहुत फीडबैक फॉर्म लोकल आरपी के साथ हम शेयर कर लें या वो भी पढ़ ले तो अच्छा रहेगा उसके लिए। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है नए लोगों को। तो यहाँ पे काफी सारे नए लोग आए हैं, मैं उनसे सुनना चाहूंगी। मुकेश जी यहाँ आए हैं, नए वॉलेंटियर हैं हमारे। मुकेश जी, विल यू लाइक टू स्पीक? हाँ सपना, कुछ कहना है? Yes, ma'am. Am I मैम audible? हाँ मैम यस मैम मैं ये कह रही थी MIS फॉर्म तो गूगल फॉर्म में है ना, वो तो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा ना, तो उसको फिर मेल करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। नहीं, तो आपने नहीं, फिर अभी कोई अपलोड सुना नहीं। कर दो भरनी ने तो कहा हो ना जाएगा। दिस इज द ओल्ड वर्जन। भरनी ने तो बताया वो हाँ कि लिंक दिया हाँ जाएगा। हमें हाँ और हमें जो अटेंडेंस सीट है वो हमें सॉफ्ट कॉपी भी मेल करनी रहती है, जो भी ट्रेनिंग इंचार्ज, जो भी लोकल रिसोर्स पर्सन जिसको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई अटेंडेंस सीट की, ताकि हेड क्वार्टर में वो अटेंडेंस शीट ऑफलाइन वो हार्ड कॉपी कब तक पहुंचे, लेकिन उनके पास इस तरीके से पहुंच जाएगा तो वो भी वेरीफाई कर लेते हैं कि तो कितनी अटेंडेंस हुई है। तो ये बात तो कभी बताया कभी ना कुरियर भरनी ने, टाइम अभी से ये नहीं पहुंच बोला। पाता है ना, आप शायद सही मेरे कहा, घर से आपने नेटवर्क सही का कहा, इशू आ लेकिन रहा ये बात भी अभी शेयर किया था ना। यस सपना, वी जस्ट है। शेयर ओके दैट आल्सो। ओके, यस मुकेश जी, यू वर सेइंग Yes, समथिंग? ma'am. Am I audible to you, ma'am? Ma'am, am I यस, वी कैन audible? हियर यू नाउ। Yeah. यस, यू आर ऑडिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. This was a very helpful session. I just had a request that could you also provide, like all other trainings, the recording could be provided, and also the PDF that was shared, so we can get back to it for reference at a later stage as well. So you wanted some recording of some trainings which are held online. That is what you are asking, sir? For the Are time you being, asking only for the current, training? Okay, we have only for the conducted one current. FCP program for private schools online. I would request somebody who is here in the group who has got the recording to share it with sir. Sir, are you added in the external training group? Training group you are added? No, I don't think Those so. RPs who have not been added in the training group, please reach out to Bharini, or you can WhatsApp me also. I'll add you in the group. I don't know how many of you are not added. I can see one Manoj ji also here. Manoj ji, will you like to speak? Thank you. Harish ji can also speak. Harsh ji. Anybody else who has come for the first time and wants to share what was it? Anyone? Sashi, आप तो अभी टीम का हिस्सा हो, लेकिन ट्रेनिंग के प्रोसेस के बारे में सब क्लैरिटी आ गई आपको? अनुश्री, जी बिल्कुल। सुदीपा, यस मैम। अनुश्री, 2-3 बार आपने हाथ उठाया, आप थोड़ा बोलोगे? सारा समझ आया? यस मैम, पहले मैं एक बार ऑफलाइन ट्रेनिंग में गई थी और एक बार ऑनलाइन में भी थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ये मुझे पहले पता नहीं था, तो अभी मुझे थोड़ा तो पता चल। ठीक है, अभी देखो ट्रेनिंग का हमने ऑपरेटिव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बनाया है, लेकिन ये ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है डायनामिक है। अब क्या चैलेंज आएगा वहां, वो थोड़ा बहुत तो आपको आई कैन करके फेस करना होगा, बट मोर और लेस इस प्रोसेस से अगर आप चलोगे तो स्मूथली ट्रेनिंग 15 साल तक हुई है, और मैं आशा करती हूँ माँ की कृपा से आगे भी अच्छे से होगी। यस सौरभ, बोलिए। The session was really good, but not but I have a request to अगर यहाँ पे इंटरनल ट्रेनिंग टीम का कोई बैठा हुआ है, like Tapan sir and the team. है Yeah. So can we do the
session for the new RP like Aman, Dilip, Tanushree, Usha, Sudeep, and then the Manoj ji who is here in a detail way. In a detail way. ये तो एक लिस्ट था ना, हमने कई लोगों को पता था, कई लोगों को नहीं पता था। रोल प्ले के साथ हम बहुत सारी चीजें हाँ। कर सकते हैं एज पर द रिक्वेस्ट। स्टार्टिंग से कैसा होता है, कैसे स्कूल्स के साथ ट्रेनिंग का सारा सिस्टम होता है, ये तो बेसिकली ये आजकल लोगों को क्लियर होगा, बट इन अ डिटेल वे की बाद में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत ना आए फील्ड में जाके। डेफिनेटली नोटेड, फीडबैक नोटेड। ये तो मैंने पहले ही तपन को बोला था। तपन, ये इंडक्शन में मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है इंटरनल ट्रेनर्स को कि जब भी कोई नया आरपी आए उसको इंडक्शन में ट्रेनिंग के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाए। केवल इम्प्लीमेंटेशन स्कूल विजिट के अलावा ये भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना। उनको अगर ट्रेनिंग नहीं भी करनी है, प्री ट्रेनिंग वर्क तो करना है ना, तो थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा बहुत छोटा एक सेशन आप उन लोग सबको सिखाइए, सो दैट वो लोग क्लियर रहे कि ये पूरा एक एफसीपी प्रोग्राम का बहुत सारा डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन है। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा इंडक्शन में होना चाहिए। डेटाबेस क्या काम करता है, ट्रेनिंग क्या करता है, डिटेल ना भी करवाओ तो थोड़ा आपको उनके क्या उसका रोल रहेगा ऑन द ग्राउंड समझ के उनकी ट्रेनिंग उतनी डीप होनी चाहिए। लेकिन एक जनरल एक फ्लो तो ट्रेनिंग का इंडक्शन में होना ही चाहिए। This is my point of view from my side. 100%, ma'am. What Saurabh says, I Point really taken, really support it. Yes. So nice. Thank you. Anything, Bharini, anybody else wants to share anything? Otherwise, we can wind No, it up. ma'am. Thank Yeah, you, everybody. we are all almost we've taken a lot more time than allotted. I think we Yes, can call it a actually, day. अर्नब ने कहा था हमें ज्यादा टाइम ले लो, लेकिन मुझे लगा ऑलरेडी इंटरनल ट्रेनिंग तो हो चुका है तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बट देन आई गेस अभी भी कुछ लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। और वॉलेंटियर्स का, तपन, काफी लोग नए वॉलेंटियर्स हैं, उनको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको लेके भी एक सेशन भरिनी के साथ या हमारे साथ या आप खुद ही, तपन, आप सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोशन है, सौरभ है, काफी लोग हैं, ये प्रतीक है, अंजलि है, देन सपना है, मेनी कैन कंडक्ट दिस सेशन। तो किसी को भी लेके आप वॉलेंटियर्स के साथ ये ट्रेनिंग का कर सकते हो एक प्रोग्राम अलग से, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ नहीं है जिनको जानकारी होनी चाहिए वॉलंटियर्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। भरिनी, एनी लास्ट पॉइंट्स यू वांट टू शेयर? Yeah, अदरवाइज we just थैंक यू conclude एवरीबॉडी। with mother's prayer. We conclude with Pranam mother's mantra. prayer. Yes. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयोश्रित्वा नमामि Thank you. Bye. Thank you everyone. Bye bye.